ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਲੋਕ ਰਾਣਾ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਗਭਗ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ। ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ। ਬੜਾ ਕੁਛ ਖੱਟਾ-ਮਿੱਠਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਸਾਲ ਦਾ। ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਸੋਚ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਮਿੱਥ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਰ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰੜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਗਲੇ ਹੁਣ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ, ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜੀ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਮੂੰਹ ਮੋੜਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਏਕੇ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਇੱਕ ਏਕੇ ਦੀ ਪਾਵਰ, ਸ਼ਕਤੀ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜੋ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਹਕੂਮਤ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਹ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਗਮਗਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ-ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ? ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ? ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸਟੇ ਕਰਨਗੇ, ਰੁਕਣਗੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰਨਗੇ? ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਸਾਰੇ ਤਮਾਮ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਫਿਰ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਦੀਪਕ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਲੋਕ ਰਣ ਤੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੀਪਕ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੋ ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਕੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੋਊਗੀ? ਉੱਥੇ ਜੋ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਟੈਂਟ ਆਪਣੇ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਲਾਣੇ, ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਸਟੇ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ ਸਟੇ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਣਗੇ? ਜੀ ਦੀਪਕ। कि वैसे तो पड़ाव बहुत हैं। पड़ाव तो ये समझो, हर घर हर परिवार ये चाहता है कि हमारे यहाँ भी रुके और हमारे यहाँ भी रुके। लेकिन जितने जो अपने टोल हैं, नाके हैं, जहां जहां पर भी बैठे हुए थे, किसान बैठे हुए थे, वहां वहां सभी जगह रुकते हुए आएंगे। और जो फूल फूल माला से स्वागत किया जाएगा, और जो स्वागत चलेगा वो अपना दिल्ली से लेके और पंजाब तक, जब जब तक नहीं पहुंच जाते हैं वहां तक स्वागत चलता रहेगा। पंजाब में भी जो जो टोल आएंगे, हर टोल के ऊपर स्वागत होगा। ये छोटी बात नहीं थी कि 3 कानून आना और उनको उल्टा करवाना। इतना आसान नहीं था ये, जितना अब लोग समझते ना कि ये तो बहुत आसान था। इतना आसान नहीं था। ये 3 कानून उल्टे करवाने के लिए 720 साथियों ने साथ दे दी हैं। तब जाके एक तानाशाह को झुकाया है, जब पूरी दुनिया की ताकत तो जिसको नहीं झुका सकती। जो बोल रहा था कानून जो बन गए वो उल्टे नहीं होया करते, वो कानून उल्टे करवा के उसको झुका के अभी जो सबसे बड़ा सवाल बचा है, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, सभी के मन में एक सवाल है कि एमएसपी का क्या रहा। एमएसपी गारंटी कानून इसमें साथ में था। एमएसपी का अभी जो गवर्नमेंट ने लिखित में दिया है, वो लोग सोचते हैं कि उनके ऊपर भरोसा कर लिया गया है कि गवर्नमेंट ने लिख के दे दिया, उस पर भरोसा। कोई भरोसा नहीं है, ये गवर्नमेंट को ही बता दिया था। और आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है। आंदोलन कोर्सपॉन्ड हुआ, कुछ समय के लिए स्थगित किया गया इसको। ये नहीं कि इसको समाप्त किया गया है, स्थगित किया गया है। अब जब पंजाब में आएंगे तो वहां पर भी ऐसे ही बैठेंगे जैसे पहले बैठे हुए थे ना 2 महीने, ऐसे ही बैठा जाएगा। पंजाब के भी कुछ मसले हैं जो बीच में छूट गए थे, जिनको पूरा नहीं करवा पाए थे, उन मसलों को भी हल किया जाएगा। उसके बाद जो केंद्र सरकार को टाइम दिया जा रहा है, उसमें लोगों ने बोला कि उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन इसकी टाइम लिमिट है। या तो 6 महीने में, 6 महीने तक गवर्नमेंट क्लियर बता देगी एमएसपी पे कानून बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। अगर नहीं बनाएंगे फिर एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन की रिपोर्ट, C2+50 के आधार पर खरीद, और जितना किसानों का कर्जा है, किसान कर्ज माफी, ये सभी मसले यहीं के यहीं हैं। और इनके लिए अब की बार जो आंदोलन उठा था, इस आंदोलन का भी एक बार समीक्षा की जाएगी कि कहां पर कमी रही थी और कहां पर नहीं रही थी, लोग क्यों नहीं जुड़ पाए थे, या जो लोग दूर दूर से नहीं आ पा रहे थे उसका क्या रहेगा।
पूरी समीक्षा करने के बाद उसके बाद फिर आंदोलन होगा, या तो सरकार मांगे मान लेगी। इस सरकार पे इसलिए भरोसा नहीं है क्योंकि 2016 के अंदर हरियाणा भुगत चुका है, ऐसे ही लिखित में दिया था कि सभी केस वापिस हो जाएंगे, और आज तक वो केस वापिस नहीं हुए हैं। अभी 3 दिन पहले भी 3 नौजवानों को उम्र कैद की सजा हुई है हिसार के अंदर 2016 के केस में। जी। तो सब पता है, 54,000 प्लस केस है हरियाणा के अंदर, एक हुँ, दो केस नहीं, इसलिए लोग डरे हुए। फिर दिल्ली में भी केस है, जो 26 जनवरी वाले केस हैं। उसके बाद बिल्कुल, पंजाब में भी बहुत केस हैं। अभी पंजाब सरकार तो आश्वासन दे रही कि हम कर देंगे, चलो पंजाब सरकार कर देगी, हरियाणा गवर्नमेंट भी आश्वासन दे रही है, लेकिन हमारे को ये पता हरियाणा गवर्नमेंट जो आश्वासन दे रही है ये सिर्फ चुनाव तक के आश्वासन है इनके, उसके बिल बाद ये कभी पूरा नहीं करते उसको। तो ये ना आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, आंदोलन को कुछ समय के लिए सिर्फ स्थगित किया गया है। आंदोलन वापिस होगा, वही जनता है, वही आगू है, सब कुछ वही है। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਦੀਪਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। जी, जी। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਏਦਾਂ ਵਾਪਰਨੀ चाਹੀਦੀ ਸੀ? ऐसा है वीर जी, इस आंदोलन में कई बार जैसे पहले उन्होंने बोला ये तो सिर्फ खालिस्तानियों का आंदोलन है, सिर्फ जब पंजाब आया। जैसे ही अपना हरियाणा खड़ा हुआ, ये सिर्फ जाटों का आंदोलन है। सरकार तो चाहती है आंदोलन को तोड़ने के लिए। अगर हरियाणा उठ रहा तो जाटों का आंदोलन, पंजाब उठ रहा तो खालिस्तानियों का आंदोलन। जब उधर से उत्तर प्रदेश उठा, राजस्थान उठा, तब जाके वो बातें बननी बंद हुई थी, नहीं तो बातें ऐसे ही बनती रहती। अब देखना ये है कि अगली बार जब हरियाणा उठता है, पंजाब उठता है, उस समय पे एक जो आज भी लोग बोलते हैं, बहुत से लोग, आप हरियाणा में जब घूमोगे ना, गांव-गांव घूमोगे, तो लोग ये बोलेंगे अरे वो जाट आंदोलन खत्म हो गया क्या? हरियाणा में बहुत सी जगह ऐसी है जहां पर इसको सिर्फ जाट आंदोलन समझ रहे थे। बहुत सी जगह पे इन्होंने जो दुष्प्रचार गवर्नमेंट ने किया था कि इसमें आंदोलन में सिर्फ जाट जाट है। अगली बार सबसे पहले जो मेन स्टेज है, मेन जगह है, उसमें 36 बिरादरी से आदमियों को लिया जाएगा, उनको आगे भी किया जाएगा और उनको जगह भी दी जाएगी। ये नहीं कि भाई सिर्फ जो आए थे, अभी जो कर्मचारी सस्पेंड हुए थे या नौकरी से जिनको निकाल दिया गया था, उनका क्या हुआ? उन पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। जल्दबाजी में कई चीजें छूट जाती हैं। उन चीजों पे अभी ध्यान दिया जाएगा। भाई जिन-जिन कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया था आंदोलन में शामिल होने के कारण, उन पर भी ध्यान देना चाहिए था। बहुत सी चीजें हैं जो हमारे से छूट गई थी। जो बाहर के लोग क्यों नहीं आ पाए, उसका हम नहीं लगा पाए, क्यों नहीं लगा पाए? क्योंकि काफ़ी जनता हो गई थी। ऊपर से सरकार रोज़ कोई ना कोई रणनीति अपनाती थी आंदोलन को तोड़ने के लिए। उन सब को देखते हुए सबसे पहले जो दूर-दराज के लोग हैं ना, उनको पहले लेके आएँगे यहाँ पे, और ਵੈਲ उसके बाद जब आंदोलन होगा, तब एक बड़ा आंदोलन होगा। ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ जी, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੈਮਰੇ ਤੇ, ਸਵੇਰੇ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਿਆ जी, ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਕਿ जी, ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਊਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। जी, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ जी, ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ जी। ਇਹ ਦੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਐਮਐਸਪੀ जी। ਦੇ ਲਈ ਦੂਜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि आज़ादी के 70-72 साल के बाद भी आज तक सरकारें बदलती रही हैं, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी कोई, आते रहती है सरकारें। लेकिन बिल्कुल, एमएसपी पे आज तक किसी ने भी ठोस कदम नहीं उठाया है। आश्वासन सभी सरकारें देती हैं, और ये बातें तो वहां पर भी हुई थी भाई, एमएसपी सबसे ज़रूरी एमएसपी है। और अगर एमएसपी लागू हो जाएगी तो फिर ये चाहे कोई भी कानून लेके आए, उससे क्या किसान को नुकसान नहीं होगा। किसान को, गरीब को, मजदूर को, किसी को भी नुकसान नहीं होगा। एमएसपी एक छोटी चीज नहीं है। ये लड़ाई तो चलो 1 साल तक चली तब हम जीते हैं। एमएसपी के लिए जो लड़ाई चलेगी ना, हो सकता है वो 2 साल, 5 साल, 10 साल तक भी चल जाएगी। लेकिन एमएसपी के लिए अगर लड़ना है, उसके लिए सबसे पहले आप सबको मजबूत होना पड़ेगा। इसमें अगर हमारे 720 साथी शहीद हुए हैं, तो उसमें पता नहीं कितने साथियों की कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि वो लंबा चलेगा। और लंबा उससे पहले सोच रहे हैं कि भाई सरकार ही कुछ समझ ले। ये सरकार ये समझते हुए किसानों को लड़ना भी आता है और बैठकर शांतिपूर्वक लड़ना आता है। ये तो एक छोटा सा वो दिखाया गया था कि हम लड़ भी सकते हैं। कहीं ये सरकार ये सोच जाए भाई किसान तो खेतों में काम करता और वोट डालता है बस, इतना ही काम समझते थे किसान का ये।
इनको ये नहीं पता था जब किसान खड़ा होकर लड़ेगा तो अपनी मांगे भी मनवाना जानता है। अब बिल्कुल। या तो 6 महीने में, साल में इसका रिजल्ट आ जाएगा, नहीं आया, अगर ये कन्फर्म हो गया एमएसपी पे ये कुछ नहीं करना चाह रहे, तो अगला आंदोलन बहुत ही जल्द होगा। और वो एमएसपी के लिए सबसे पहली मांग जो होगी ना, उस पे एमएसपी की होगी, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट की होगी, C2+50 के आधार पर किसानों की फसल की खरीद होनी चाहिए और किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ होना चाहिए। ये ही सरकार है। 45,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया उद्योगपतियों का। किस उस पे माफ किया? किसानों का ये कुछ लाख रुपए माफ नहीं कर सकते, उद्योगपतियों के करोड़ों रुपए माफ हो जाते हैं। तो वीर जी, ये जो सरकार है ना, ये सरकार है उद्योगपतियों की सरकार। इनको किसान से, गरीब से, मजदूर से या शिक्षा, स्वास्थ्य से, किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। आज एक नया कानून पास हुआ है, जो बैंकों में हमारा पैसा रखा हुआ है ना, उसकी उसकी बैंकों की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी, कोई गारंटी नहीं है बैंकों की। अब उस पैसे को अगर वो खत्म कर देंगे तो हमारा क्या होगा? आदमी इसीलिए रखता है बैंकों में अपना जो पैसा होता है, जमा पूंजी जो होती है। अभी जो जैसे हम आर्मी से जैसे पेंशन आए हैं, हमारी जो आर्मी का पैसा मिला है वो हमने बैंकों में रख दिया। अब बैंक बोल रहे हैं हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं, उस पैसे को फिर कहाँ रखे? अभी बैंक बिल्कुल। का एक बहुत बड़ा जो मायाजाल है ना, वो शुरू होगा अब इनका। बैंकों का जो निजीकरण था वो तो एक अलग समस्या। अब जो बैंकों में पैसा है ना, किसान का या गरीब का, मजदूर, सभी बैंकों में रखते हैं, अपनी सेफ्टी के लिए रखते हैं। अब उस पैसे को ये खत्म करना चाह रहे हैं। ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਮਰਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਦੀਪ। जी। अभी क्या है, सिर्फ बैंकों का नहीं, पुलिस विभाग का भी निजीकरण होने जा रहा है। और ये जो करना चाह रहे थे ना, एक कानून आया था, उसका कहीं जिक्र नहीं हुआ था। ये आर्मी का जो निजीकरण करना चाह रहे थे ना, छोड़ो, ये बात तो बहुत बड़ी है, लेकिन उससे जो जिन्होंने मना कर दिया, वो हादसा है या क्या है, उसकी तो जांच होगी, अभी बाद में पता चलेगा। लेकिन ये लोग आर्मी का जिस दिन निजीकरण कर देंगे, उस दिन ये समझ जाना देश पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। आज के समय पर लोगों का सबसे ज्यादा भरोसा आर्मी के ऊपर और किसान के ऊपर। वो इसलिए क्योंकि किसान के बच्चे ही आर्मी में जाते हैं। लेकिन ये उस भरोसे को तोड़ना चाह रहे हैं, इसलिए किसान ने लड़ाई छेड़ी थी। और ये तो एक युद्ध है, ये नहीं कि ये लड़ाई सिर्फ फसल और नस्ल की। हमने पहले ही बोला था, ये लड़ाई फसल और नस्ल की है। फसल तो हमने अपनी बचा ली है, अब बारी है नस्ल बचाने की। जो पुलिस विभाग में है, बैंकों में है, जो नौकरी करने वाले हैं, उनको भी बचाने की जिम्मेवारी अब किसान की है। और वो जो अगला आंदोलन होगा ना, वो इसी आधार पे होगा। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਦੀਪਕ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਮਝਾਇਓ। ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਗੇ ਕਿ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੂਗਾ। ਟਿਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? टिकैत साहब देखो, कुछ भी बोलते हैं, वो बोलते रहे, ये बोलना एक अलग चीज है, लेकिन वो मोर्चे से बाहर कोई भी फैसला नहीं लेंगे, ये भी क्लियर है। उन्होंने बोला था कि भाई एमएसपी तक, तब तक सबकी सहमति भी थी। ये नहीं कि उन्होंने अपने आप से बोलते, सभी की सहमति थी भाई एमएसपी तक यहीं बैठेंगे। फिर उनको बताया गया कि जैसे हम जो स्टेटों की दिखते हैं, जो अपने सूबों में दिखते हैं, एक बार उनको भी दूर करना जरूरी है। फिर उसके बाद फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से टकराएंगे। पहले वो दिक्कत दूर करनी जरूरी। अभी टिकैत साहब खुद यूपी में आंदोलन करेंगे, यूपी की जनता को जगाएंगे, क्योंकि यूपी की जनता जिस इतना बड़ा, सबसे बड़ा स्टेट है यूपी। और अगर यूपी पूरा जाग जाता ना, तो मेरे ख्याल में हरियाणा और पंजाब को भी उठने की जरूरत नहीं थी। उसको जगाया जाएगा। अभी टिकैत साहब को बता दिया, आप पूरे उत्तर प्रदेश को जगाइए। अब वो उनकी जिम्मेवारी उत्तर प्रदेश को जगाने की। अब पंजाब की जो जत्थेबंदी है, पंजाब में बैठेंगी, ये नहीं कि वो घर चली गई है। घर तो आप चलो, हम अपनी स्टेट में आ गए तो वो घर है, लेकिन दिल्ली भी हमारा ही घर है, दिल्ली हमारी है, किसी और की नहीं है। फिर आ जाएंगे दिल्ली, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बार पूरी जनता को क्लियर समझाना पड़ेगा कि आपका कहाँ कहाँ पे नुकसान हो रहा है। वो समझा के उसके बाद तब जब उठ के आएंगे ना, अब की बार ये सरकार ये सोच रही है कि 10 लाख 5 लाख ऐसे ही उठ के आएंगे। अब की बार बच्चा बच्चा उठ के आएगा। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪਕ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਭਾਗ ਲਊਗਾ ਅੱਗੇ। ਯਾਰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆ ਗਈ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਗਈ ਕਿ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ। जी, बिल्कुल आई है अवेयरनेस। और जो सबसे बड़ी अवेयरनेस आई है ना, जिसको देख के सरकार घबराई है, जो ये भाईचारा बना। जब पंजाब वाले पंजाब से चले थे ना, तो उनके मन में एक सवाल था
कि भाई हम वहां पे जाएंगे, पता नहीं हरियाणा वाले हमारे बारे में क्या सोचते हैं, यूपी वाले हमारे बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन जब वहां यहाँ पर आए और इकट्ठे बैठे एक साल, तब पता चला कि हम तो बस एक ही चीज, हमारी सिर्फ थोड़ा भाषा का प्रॉब्लम है और कोई दिक्कत नहीं है। वो तो भाषा भी रल मिल के जब रहे तो हरियाणा वाले पंजाबी सीख गए, पंजाब वाले हरियाणवी सीख गए, यूपी वाले थे वो भी पंजाबी सीख गए। तो जब इकट्ठे बैठे हैं तब पता चला हमारी सबकी समस्याएं एक है। सिर्फ ये था कि हमारे को अलग अलग करके दबाया जा रहा था। तो अब जो भाईचारा ये बनया है, जो ये एकता बनी है, ये तो कायम रहेगी ही रहेगी। अब जो दूर दराज के लोग है ना, वो भी हमारे से जुड़ चुके हैं। अब की बार जब आएंगे, पहले दूर वाले हमारे पास आ जाएंगे, तब यहाँ से उठ के जब दिल्ली पे जाएंगे ना, या तो उससे पहले ही सरकार मान जाएगी, एमएसपी पे लिखित रूप में आ जाएगा। और जितनी भी किसानों की समस्याएं हैं, जो नरेंद्र मोदी साहब ने 2014 में बोला था ना कि पहली कलम से किसानों की समस्याएं दूर करूंगा मैं, या तो वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब हो सकता है उनको उनकी कलम भी मिल गई होगी। अगर उन्होंने माफी मांगी है, शायद वो माफी इसलिए मांगी थी कि उनको उनकी जो कलम गुम हो गई थी ना 2014 में, वो 2021 में शायद मिल गई होगी। नहीं मिली है तो अब की बार कलम नहीं मिलेगी, तो देश में मोदी का बीजेपी ही नहीं मिलेगी। स्वामीनाथन रिपोर्ट ਤੇ ਦੀਪਕ ਜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋर्ट लागू नहीं कर सकते। ऐसा है, जो ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट और C2+50 के आधार पर, ये स्वामीनाथन रिपोर्ट में ये चीजें C2+50 के आधार पर खरीद होनी चाहिए। ये ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2011 में उस समय पर जो प्रधानमंत्री थे उन्हें डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनसे मिले थे कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। यूज उन चीजों का वीडियो भी है और हर चीज है। अब जब इनको दिखाया जाएगा, उस समय पे आप स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट मांग रहे थे, अब आप इसको रद्द करवाने के लिए आप कोर्ट में जा रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा? अगर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होती है ना, तो फिर किसानों को कभी जिंदगी में आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जरूरत इसलिए पड़ी किसानों को कि भाई ये तो सबको दबाते आ रहे थे, हर चीज को बेचते आ रहे थे, कोई उठ के खुश नहीं था। किसानों ने एक तरीका दिखाया, लड़ने का तरीका सिखा दिया। अभी सब में जागरूकता दोबारा से, जो लोग ये समझ रहे हैं उनको बताया जाएगा आपकी ये समस्या और ऐसे दूर हो सकती है। वो जी पूरी जागरूकता करके अब अगला आंदोलन तब होगा। हाँ होगा बिल्कुल जी। ਦੀਪਕ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। धन्यवाद वीर जी। ਦਰਸ਼ਕੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜਾਅ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਊਗੀ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਲੋਕ ਰਾਣਾ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਧੰਨਵਾਦ।